Hello students, today onwards, yesterday we have discussed about the very important point, that is how to solve example by using the distance formula. Okay, today also we will see some examples related to that only, how to solve different types of examples. Now I have written here one example. Show that the points 1 7 4 2 minus 1 and minus 4 4 are the vertices of square. These type of examples are very important because those types of examples are totally depend on distance formula. And the very important thing is that these types of examples are asked for 3 marks, sometimes it is for 4 marks, and very simple, easily you will get the answer. Only we have to use here simply distance formula. Okay, then how to solve like that examples I am going to explain over here. But before that, look here, show that the points 1 7 4 2 minus 1 and minus 4 4 are the vertices of square. When you are going to solve like that examples, it is very important that you must know the properties of the square. They may ask, instead of square they may ask rhombus, they may ask rectangle, they may ask parallelogram. Do you understand what I am saying? They may ask one or the other triangle also. Okay, that's why when you are going to solve these type of examples, the very important thing is that you must know about the properties of that respective rectangle or properties of the respective quadrilateral or triangle. Do you understand? तो ट्रायंगल में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है. Do you understand? Scalene triangle भी हो सकता है. Okay, like that examples they may ask. Then when you are going to solve, now here we are going to discuss about the example of square. Then which are the properties of the square? We must know. Okay, properties of square कौन सी है? उसकी चार साइड क्या होती है? इक्वल होती है. नॉट ओनली साइड्स बट ऑल्सो द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर्स आर ऑल्सो इक्वल. रिमेंबर दैट. दैट सेम थिंग इज हैपन इन केस ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो. रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals equal. Parallelogram opposite sides are equal but diagonals are not equal. Do you understand? Rhombus में भी ऐसा होता है, sides are equal but diagonals are not equal. Okay, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा तो दो साइड्स इक्वल होगी, इक्विलैटरल होगा तो 3 साइड्स इक्वल होगी. ये प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी तरह से हमें मालूम होनी चाहिए. देन वी कैन सॉल्व लाइक दैट एग्जांपल्स. नाउ आई एम गोइंग टू शो हियर, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 minus 1 and minus 4 4 are the vertices of square. How to start this example? Look here, first of all we are writing solution and given. Here only points are given. Okay, here it is not given, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D. We will consider here point A. You can consider any point, no problem. 1 7, B 4 2, C minus 1 and D minus 4 4. Okay, and after that for understanding purpose we will draw here one figure. हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्क्वायर की फिगर हम ड्रॉ करते हैं. सब ए बी सी डी, उसके डायगोनल्स भी होंगे. ये है डायगोनल और ये डायगोनल. ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ऐसा अगर एग्जाम्पल हो, शो दैट द पॉइंट्स दोज पॉइंट्स आर वर्टाइस ऑफ अ स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी आंसर फिक्स है इसका, ये स्क्वायर ही है, ओनली हमें दिखाना है. डू अंडरस्टैंड? ओके, समटाइम दे में आस्क आइडेंटिफाई द 4 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ विच क्वाड्रिलैटरल, आर द वर्टाइस ऑफ विच क्वाड्रिलैटरल. तो हमें वो प्रूव करके दिखाना है. कैसे प्रूव करना है? देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस फिगर देन यू विल कम टू नो दैट हियर ए बी बी सी सी डी ए डी. डू यू अंडरस्टैंड? कितने साइड है? 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी सी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी डी, देन आफ्टर द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी ए, ये फाइंड आउट करना है. बाद में क्या फाइंड आउट करना है? देखो, ए सी एंड बी डी मीन्स हियर वी आर गोइंग टू यूज हाउ मेनी टाइम्स? नियर अबाउट 6 टाइम्स. नियर अबाउट हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस फार्मूला. तो 6 बार हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है. हमें 6 इक्वेशंस मिलेंगे और आफ्टर दैट, आफ्टर दोज 6 इक्वेशंस वी कैन राइट इजीली और वी कैन सी इजीली दिस गिवन शेप इज स्क्वायर और नॉट. Okay, this given shape is square or not. Okay, then first of all I am going to use here, I will find out first of all AB. Okay, AB is equal to, we know that once we have tried only the formula x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. वैल्यू पुट करो. अभी इधर x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो. ओके, ये x1 y1 है, x2 y2, ए बी कंसिडर किया तो पहले इसको x1 y1, ये क्या होगा? x2 y2. ओके, समझ में आ रहा है? पहले ये x1 y1 और दूसरा x2 y2 होगा. तो वैल्यू पुट करो डायरेक्ट. x2 की वैल्यू क्या है? देखो
दिख रहा है तुम्हें? x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, y2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो y1 की वैल्यू क्या है, 7. वी विल पुट हियर व्हाट यू विल गेट, सी x2 4 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट, सी 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 कितना हो गया, 2 माइनस 7 5 माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट. 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25. तो कितना आ गया, √34. ओके, अगर इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं तो फैक्टर्स निकालने हैं, अगर नहीं निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसी को ही इक्वेशन 1 बोल देंगे. तो अच्छी तरह से ध्यान से देखो इधर क्या किया है मैंने. हियर आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ ए बी. ऐसे ही हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी की, बाद में सी डी की, बाद में डी ए की. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है कुछ? ओके, ये एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व करना है. बाद में कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी सी. डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, अब ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. बी सी क्या होगा देखो, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -1 -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 प्लस, तो इसको x1 y1 और इसको क्या करना है, कंसिडर करना है x2 y2. ओके, जो पहला पॉइंट होगा वो x1 y1, दूसरा पॉइंट जो होगा, समझ में आ रहा है, जो पहला पॉइंट होगा वो x1 y1, दूसरा पॉइंट जो होगा x2 y2. अब इधर देखो BC की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट कौन सा है, B, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, C. तो इसको x1 y1, उसको x2 y2. बाद में क्या होगा, -1 -2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट. डायरेक्ट हम लिखेंगे अभी देखो, -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट 25 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू √34. ये होगा इक्वेशन सेकेंड. समझे? ऐसे हमें कौन सी वैल्यू फिर से फाइंड आउट करनी है, सी डी की. सी डी भी डायरेक्ट लिखेंगे हम. देखो इधर -4 माइनस इन द ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस इन द ब्रैकेट ये भी लिखना पड़ेगा, -1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट -4 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा, +1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये क्या होता है देखो, 4 माइनस माइनस क्या होगा, 4 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, इधर लिखता हूँ देखो, ये देखो -4 + 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, इधर भी प्लस हो गया. ओके, तो इन द स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें, -4 + 3 -4 + 1 -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया, 34. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर, कितना आ गया, 34. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3. यू अंडरस्टैंड? सी डी देखा कैसे फाइंड आउट किया मैंने. तीसरी बार मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और ये फाइंड आउट हो गया. अभी देखो, अभी कौन सा फाइंड आउट करेंगे, सी डी हो गया, बाद में कौन सा बचा, डी ए डी भी लोगे थे चलेगा. ओके, जो पहला पॉइंट है x1 y1, तो दूसरा पॉइंट है x2 y2. वैल्यू पुट करो, क्या आएगा देखो अच्छी तरह से, 1 -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 -4 ब्रैकेट स्क्वायर, क्या आया देखो, 1 -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अच्छी तरह से देखो उधर सी की वैल्यू क्या है देखो, डी ए फाइंड आउट करना है हमें, डी यानी कि x1 y1 और ए यानी कि x2 y2. ओके, तो x2 की वैल्यू क्या है, 1 -4 इन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 -4 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो अभी सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है, 1 माइनस प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, ओके, 3 ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्या हो गया, 1 + 4 5 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो क्या हो गया देखो, 1 + 4 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट, क्या आएगा, 25 + 9 दैट इज इक्वल टू √34. इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 4. अंडरस्टूड? अभी देखो अच्छी तरह से एग्जांपल देखो, हमने चारों साइड 4 साइड्स फाइंड आउट किया और 4 साइड्स 1 2 3 4 अगर इक्वेशन देखोगे तो आंसर क्या है, √34 √34 √34 √34. यानी कि इधर चारों साइड ऑफ दिस
क्वाड्रिलेटरल, इस जो क्वाड्रिलेटरल है यानी कि स्क्वायर हमें प्रूव करना है, तो इस स्क्वायर की चारों साइड क्या आ गए ऑलरेडी इक्वल आ गए। तो बाद में क्या फाइंड आउट करना है हमें, डायगोनल। पहला डायगोनल AC है, पहला डायगोनल कौन सा है, BD कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, AC कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ लुक, देन डायरेक्ट हम फाइंड करेंगे BD इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट, डायरेक्ट पुट करो वैल्यूज, क्या आता है देखो, -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कैसे, B की वैल्यू देखो क्या है, B के पॉइंट्स क्या है 4 2 और D के क्या है -4 4। ओके, तो x2 माइनस x1 अच्छी तरह से हमने पुट किया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो क्या आता है 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, क्या आता है 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो -4 माइनस 4 -8 स्क्वायर आएगा, क्या आएगा -8 स्क्वायर, और 4 माइनस 2 क्या आएगा, प्लस साइन बीच में है 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट, ये क्या होगा 64 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू क्या आया 68। ये साइड के जैसा नहीं आएगा, इसकी वैल्यू साइड की जैसे नहीं आएगी, ये क्या है, इसको क्या होगा देखो 8 का स्क्वायर हमने किया प्लस 2 का स्क्वायर किया, तो इसमें क्या आया 64 प्लस 4 तो 68 दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। ओके, ये साइड की जैसा इक्वल नहीं आएगा क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं और साइड्स डिफरेंटली इक्वल होती है, साइड की वैल्यू जितनी होती है उसकी ही उतनी ही डायगोनल की वैल्यू नहीं होती। बाद में कौन सा बचा है AC। ओके, तो AC भी हम फाइंड आउट करेंगे, -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 -7 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू x2 माइनस, तो अभी तुम्हें पता चला होगा मैंने क्या कर रहा हूँ मैं इधर। ओके, इसके लिए अभी अच्छी तरह से देख सकते हो इधर A और C चल रहा है अभी। ओके, x2 x1 x1 y1 x2 y2 वैल्यू हमने पुट की, तो पुट करने के बाद क्या आता है देखो अच्छी तरह से, -1 क्या होगा इन द स्क्वायर रूट -2 ब्रैकेट स्क्वायर होगा, समझे, इन द स्क्वायर रूट क्या होगा -2 ब्रैकेट स्क्वायर, -1 -7 क्या होगा प्लस -8 ब्रैकेट स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा आंसर 4 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू √68, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अभी अच्छी तरह से देखोगे तुम क्या आया देखो इधर AC का वैल्यू भी सेम आ गया, -1 ओके -2 ब्रैकेट स्क्वायर इधर -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -8 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 4 प्लस 64 आ गया, तो √68 हो गया। ओके, अभी अच्छी तरह से देखोगे तो 1 2 3 4 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4 व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, क्या हमें मिला है देखो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, करेक्ट, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, क्या मिला है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इधर क्या बोल सकते हैं हम, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 तुम्हारे सामने है देखो, अभी 5 एंड 6 से हमें क्या मिला, BD एंड AC कौन है इधर, BD एंड AC डायगोनल्स, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, BD इज इक्वल टू AC यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, BD इज इक्वल टू AC यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर अगर साइड्स इक्वल है डायगोनल्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है डायगोनल्स इक्वल है, तो ये सारे पॉइंट्स, तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, हियर पॉइंट्स 1 7, हियर पॉइंट्स फाइनल में आंसर लिखना है, हियर पॉइंट्स 1 7, दूसरा पॉइंट कौन सा है 4 2, तीसरा पॉइंट कौन सा है -1 एंड चौथा पॉइंट कौन सा है -4 4 आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं एक पेज पे तुम्हें दिखा देता हूँ, अभी इधर देखो, अंडरस्टैंड हो जाएगा अच्छी तरह से। देखो वही एग्जांपल है, इधर मैंने एक सेपरेट पेज पे लिखा है। हमने क्या किया, पहले पॉइंट्स लिखे, बाद में एक फिगर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ की, बाद में हमने AB का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, BC का डिस्टेंस फाइंड आउट किया,
सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, देन हमने डायगोनल फाइंड आउट किए, √68 आ गया, बी डी एंड ए सी. फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 वी गेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. All sides are equal. From equation 5th and 6th we get BD is equal to AC, diagonals are equal. Hence points 1 7 4 2 -1 and -4 are vertices of square. ऐसे फाइनल में आंसर लिख देना है. डू अंडरस्टैंड? तो प्रैक्टिस के लिए मैं इधर 2-3 एग्जाम्पल तुम्हें भी दे रहा हूँ. ये एग्जाम्पल तुम अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो. आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट दिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों. Because these type of examples are asked for, you not believe 3 marks and 4 marks. You try to solve those examples. Okay, we will see in the next video. We will see different types of example. Thank you.